Parties of the India bloc are now expecting to put up a massive show of strength today in Jharkhand at the scheduled rally in Ranchi as the country approaches the remaining 6 phases of the Lok Sabha elections. Leaders from 14 political parties, including Mallikarjun Kharge, Lalu Prasad Yadav, Farooq Abdullah, Akhilesh Yadav and Sunita Kejriwal, wife of Delhi CM Arvind Kejriwal, will be participating in the opposition India bloc's Ulgulan Nyay rally. These are the live visuals there. We're expecting the leaders to arrive in a short while from now. In fact, Sunita Kejriwal will be accompanied by Bhagwant Mann, the Punjab Chief Minister, and Sanjay Singh will also be arriving at the Ranchi airport. In fact, Priyanka Chaturvedi will also be representing the Uddhav Thackeray's party at the Ranchi rally led by Jharkhand Mukti Morcha. In fact, the rally will be held in Jharkhand's capital, Prabhat Tara ground. Now, this is, of course, the opposition rally. Talking about Rahul Gandhi, from what we understand, the latest that we have is that he will be skipping the rally, and the reason behind this is said to be his ill health. We will, of course, get you more details on that, but this is the mega opposition rally that will be held in a short while from now in Ranchi, where the Congress would be getting around 7 seats, the RJD, the CPM would be getting 1 seats, and the rest of the seats would be going with the Jharkhand Mukti Morcha. Now the first phase would be taking place on 13th May, so it becomes extremely crucial from the coalition point of view that the top leadership of all the political parties what is left of the India alliance is the question. It is their prerogative if they want to come together in this rally, but the point is that the people have rejected them, and those that pretended to be corruption-free have been proven to be the most corrupt. On the other hand, you have a Prime Minister and Prime Minister Modi that has worked tirelessly to ensure that 60 crore Labhartis have benefited to schemes, and not through theatrics and optics, but through hard work and diligence. And as our Prime Minister says, he's not interested in just making headlines like the India Alliance is interested in. He is interested in deadlines and living up to that commitment. गठबंधन के लोग तो पिछले 1.5 साल से बैठक कर रहे, 2 साल से, और जिन्होंने महागठबंधन इंडी गठबंधन बनाया था वही अब हमारे साथ है, नीतीश कुमार जी। इसलिए इस गठबंधन का क्या कोई स्वरूप ही नहीं है। 2019 में भी हारे थे, 2024 भी इंडी गठबंधन हारे। देखिए, सीधी बात है कि मन की बात और मनमानी करने वाले के साथ हमारी लड़ाई है। आज जो रैली है, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री को जो झारखंड के लोगों ने चुना था, उनको षड्यंत्र और साजिश के तहत स्वतंत्र एजेंसियों को गुलाम बना करके उनको जेल भेजने का काम किया गया। उसको लेकर के सभी लोग आक्रोशित है, झारखंड के लोग। उस निमित्त हम लोगों ने ये रैली आयोजित की है, उलगुलान न्याय महारैली। इसमें सभी लोग शिरकत कर रहे हैं। तमाम लोगों के जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, उसको हम एकत्रित करके कहीं ना कहीं सरकार, जो अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों का साथ देने वाले लोग हैं, हमने अंग्रेजों को भगाया है। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे के जो साथी हैं, उनको भी भगाने का काम करेंगे। ये जो रैली होगी, ये मेरे ख्याल से चौथी रैली होगी। एक बॉम्बे में हुई थी, उसके बाद पटना में हुई थी, दिल्ली में हुई थी और यहाँ पे हो रही है। और एक रैली हुई थी, वो अलायंस की रैली हुई थी यूपी में भी। तो बड़े रैलियों का तो फायदा होता ही है। लाखों की तादाद में लोग आज जुड़ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से चुनाव का भूगोल ही नहीं बजेगा, लेकिन ये जो फासीवाद ताकतें हैं, उनके खिलाफ जो है एक जंग की ऐलान जो है यहाँ से किए जाएगी। स्टेज के बगल में 2 कटआउट मौजूद है, जहां पे एक कटआउट है अरविंद केजरीवाल का, और आप देख सकते हैं कि कटआउट के सामने किस तरीके से जेल की तस्वीर बनी हुई है, और दूसरी तरफ जो है हेमंत सोरेन का कटआउट बना हुआ है। देखिए, दोनों ही जो मुख्यमंत्री अभी फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है। हेमंत सोरेन फॉर्मर मुख्यमंत्री है झारखंड के, और देखिए दोनों की जो धर्मपत्नी है सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन, दोनों ही यहाँ पे मौजूद रहेंगे, और दोनों ही जो है यहाँ से अपना वक्तव्य रखेंगी लोगों पे कि किस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज को लगातार मिसयूज किया जा रहा है। देखिए, इंडिया ब्लॉक अलायंस की अगर बात करें तो लास्ट जो रैली हुआ था वो
इस मार्च दिल्ली में हुआ था और ये दूसरा रैली जो है झारखंड में होने वाला है। देखिए, झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड का जो चुनाव है वो 13 मई को पहला चरण होगा और लोगों की आप भीड़ देखिए, पूरा जो ग्राउंड है लोगों से कचाकच भर चुका है। और चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो या तमाम अलग जो विपक्ष के पार्टी है, समाजवादी पार्टी या आरजेडी हो, सभी का ये कहना है कि लोगों का जो सपोर्ट है, जो हवा है वो विपक्ष की तरफ है, वो इंडिया अलायंस की तरफ है। इसीलिए ये नारा लगातार लगाया जा रहा है यहाँ पे कि झारखंड झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। और इसी नारे के चलते हुए जो तमाम विपक्ष के नेता है वो इस समय जो है कुछ ही देर में रांची में पहुंचने वाले हैं और लोगों को संबोधित करने वाले हैं।